Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. Children, today we are going to study your 30 number chapter from your book Collins English Grammar and Compositions, Stopping by Woods on a Snowy Evening of class 7. This is one of the famous poem. This poem is maybe in your English literature book also. Literature book में भी ये हो सकती है और this poem is also in the syllabus of higher studies, right? इंग्लिश लिटरेचर में जो बीए और एमए की जो सिलेबस होती है इसमें भी ये पोएम अवेलेबल होती है। लेकिन इसकी ये जो पोएम है इसकी अगर हम लोग डिटेल एनालाइज करें तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट नोट और सिंपल समरी बताऊँगा इस पोएम की, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे इन वेरी शॉर्ट, राइट, ताकि आपको एक सेंट्रल आइडिया के बारे में पता चल जाए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे आप डिसलाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। एंड प्लीज़ शेयर योर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड द ग्रुप्स। सो शुरू करते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फॉस्ट। The poem is about four stanza. First stanza is whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. What does the meaning of these lines, right? So the जो poem start होता है, the poem begin with the lines stopping by woods on a snowy evening, right. The title of the poem, with his speaker intentionally considering the analyzing the fact that this wood seems familiar to them. Technically they are trespassings on another person's property or a forest on land that does not belong to them, right. पोएम जो है कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट जो है, जो मतलब वुड है, राइट, हुस वुड्स, स्टार्टिंग के जो लाइन है हुस वुड्स। सो बताया गया है, एक किसका है इसमें बताया नहीं गया है। इट कंसिडरिंग मे बी द स्ट्रेंजर और समवन बट डज नॉट बिलोंग टू द पोएट, द नरेटर और द स्पीकर। बट नोइंग दैट मैन वॉन्ट बी अराउंड फॉर ए वाइल, the speaker can't stop themselves for talking a few moments to watch the peaceful descent of winter through this forest. लेकिन इस टाइम में यहाँ पर कोई है नहीं, राइट, नो वन इज़ अराउंडिंग। एंड जो मोमेंट है, जो एटमोसफियर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है फॉरेस्ट में, सुनसान, तो दे डोंट रेफर टू द सब्जेक्ट लेटर ऑन इट्स अंडरस्टैंड द बोथ शेयर्ड memories in the past. The poet is evident of civilizations nearby the woods house and the village. Poet शायद यहाँ पर बताता है कोई यहाँ पर रहता होगा, कोई गांव है शायद, right. They are aware of the people but they don't know the speaker is there. उनको शायद पता नहीं है कि यहाँ पर कोई है, खड़ा है, right. The villager or the people, those who are living in the forest. फिर आगे क्या होता है। मोस्ट पीपल रिमेन इन द डोर्स, नरेटर सीम्स टू enjoy his solitary existence. The narrator is passing by someone's residence, feeling satisfying with their shadowy existence. They have stopped briefly to take in the wondrous view in the front of them. स्टेंजा नंबर सेकंड की बात करें, स्टेंजा नंबर सेकंड क्या है। स्टेंजा नंबर सेकंड, ओके, सेकंड नंबर स्टेंजा, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and Forzen Lake, the darkest evening of the year. Forzen Lake एक जमा हुआ लेक, राइट, जो इतनी ठंड है, ठंड होने की वजह से पानी पूरी इस तरह से जमा हुआ, फॉर्जन लेक, राइट। इस लेक इतना जमा हुआ लेक है कि यहाँ पर हम लोग एक क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, इस तरह से ग्राउंड की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं लेक में, क्योंकि पानी पूरी तरह से जम चुकी है। सो इस स्टेंजा की हम लोग अभी
डिस्कस करेंगे, मीनिंग निकालेंगे क्या है इसमें. Like stanza, in this stanza too, the narrator draws attention to the human aspect of preference. It interesting for the speaker to note that the horse accompanying them on their journey isn't able to fathom to speaker. He simply stopped the stare at the woods. With this phrases the darkest evening of the year. The darkest evening of the year यहाँ पर बताया गया है. It is easy to assume that this poem take place on the night of the winter solstice, right? But this can also be interpreted to refer to the more difficult time in a person's, right? यहाँ पर जो बताया गया है शायद किसी पर्सन का बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, या वो विंटर का ऐसा सीज़न जो शायद नाइट के टाइम है, बहुत ही डार्क है. टू सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कुड बी लिटरल, or it could be mean the speaker is having a hard day. So it all more reason to stop and take a breather from the stresses and difficulties demanded by the life, while their horse look on without a care in the world, right? Next stanza number third की बात करें. In stanza third, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. On the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. In stanza 3, the reader of the poem should feel the same peace the narrator is describing. Right? जो narrator यहाँ पर बता रहा. The narrator continues to describe the thoughts they believe are in the horse mind, which currently shakes. The bell has his struggles along the road. The bells jungle peacefully, indicating the horse inclination to leave the woods for good, which feels gloomy and solitary since the horse can't speak its mind. The narrator chooses to. Right? इस तरह से है. और जो स्टेंजा 4 है, स्टेंजा 4 की अगर हम लोग बात करें, the woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So in this stanza, the speaker make it clear that unfortunately peace doesn't last forever. Whatever long, dark, difficult day prompted this stop in the woods hasn't gone away while it was being started at. Distractions are wonderful things, and anything that can keep one's mind off the troubles in a welcome addition to any day, but the real world still exists, right? So the last line of the poem is about that before okay, a miles to go before I sleep, and miles to go before I sleeps here is considered एज ए रेस्ट, या तो पोएट रेस्ट करना चाहता है या बिफोर डाई. सो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर हम लोग लिटरेरी मीनिंग की बात करें, यहाँ पर डाइज को कंसिडर करना ज़्यादा बेटर है, राइट, ज़्यादा मीनिंगफुल है. एंड the poet is want to say about these lines that he have to do something, some work before he dies. He have to keep promise to someone, maybe his family, maybe someone, maybe his fellows. So this is the poem about the nature. The one scenery has been described, the very peaceful situation about the forest, right, बताया गया है. सो एक छोटी सी समरी थी, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद डिटेल समरी आपको बताऊंगा. कुछ पोएम्स की सीरीज़ में लाने वाला हूँ, तब आप उसमें देख सकते हैं. मे बी ये वीडियो आपका हाफ एन आवर या उससे भी ज़्यादा बन जाए अगर हम लोग इसको डिटेल लिटरेरी मीनिंग और टेक्निकली मीनिंग की बात करें. सो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर. एक्चुअली मैंने देखा कुछ दिनों से फ्यू ऑफ यू आर
mention the comment that please make a video of this chapter. So and question and answer also. So इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर. आंसर, वेयर इज़ द पोएट एंड व्हाट ही इज़ डूइंग देयर. ए पार्ट फर्स्ट वन. राइट, ए पार्ट फर्स्ट वन की जो क्वेश्चंस हैं इसकी बात करते हैं. द पोएट इज़ एमिट वुड्स ओन्ड बाय ए विलेजर. आंसर की बात करें, एंड ही इज़ इंजॉइंग द सीनरी ऑफ द डार्क इवनिंग व्हेन द वुड्स आर बीइंग कवर्ड बाय स्नो. राइट, वो वहाँ पर क्या कर रहा है डार्क इवनिंग में. वहाँ पर वो शाम के टाइम चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ ढका हुआ उस टाइम वो जंगल में खड़ा है. व्हाट सीज़न इज़ इट, हाउ डू यू नो. ये कौन सा सीज़न है और आपको कैसे पता. इट इज़ अ विंटर सीज़न डेफिनेटली. वी नो दिस बिकॉज द लेक इज़ फ्रोजन and there is a reference to the snowflakes falling. Also in winter evening, usually longer and darker, highlighted by the poet's statements, the darkest evening of the year. कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो लेक है वो भी फ्रोजन मतलब पूरा जम चुका है. इससे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये विंटर सीजन है. नंबर थर्ड की बात करें. Where does the poet think that the horse wants to ask him? What action of the horse suggests this to the poet? ठीक है. सो नंबर फोर का आंसर क्या हो सकता है. आंसर में भी वेरी आंसर अलग भी हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ. अलग मीन्स इट इज़ दिस आर सब्जेक्टिव आंसर, दैट्स वाई. सो इट सीम्स एज इफ द हॉर्स वुड लाइक टू नो इफ the poet stopped there by mistake, if he had lost his way. This is indicated by the sacking of the bells tied to the harness. इसका आंसर हो सकता है. राइट. सो हॉर्स क्या सजेस्ट कर रहा है, इसका आंसर हो सकता है. नंबर फाइव की बात करें. राइट अबाउट द साइट्स एंड साउंड डिस्क्राइब इन द वुड्स. सो जो इस जंगल में क्या क्या साउंड्स और वुड्स में क्या क्या साइट्स डिस्क्राइब है इस पोएम में, आप इसको बताएं. सो इसका आंसर इस तरह से हो सकता है. सम ऑफ द साइट्स द पोएट डिस्क्राइब इंक्लूड द वुड्स बीइंग फील्ड विथ स्नो, द इवनिंग व्हिच इज़ वेरी डार्क एंड द लेक व्हिच इज़ फ्रोजन, द सॉफ्ट साउंड ऑफ द wind blowing and the snow falling are the only sound of the poet could hear apart from the jingling sound of the harness bell made by horse. राइट, इसका आंसर ऐसा हो सकता है. नंबर सिक्स की बात करें. डू यू थिंक द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप हैज़ मोर देन वन मीनिंग. व्हाट दे आर. मैंने आपको अभी बताया कि इसका कुछ मीनिंग हो सकता है. सो इसका आंसर क्या हो सकता है, लेट अस नो. The line "and miles to go before I sleep" may mean that the poet has many things to do on his last before he retire of the day. It may also refer many goals that he want to achieve in his life before the final sleep means, which is death. So these are the valid answer. इस तरह से आंसर हो सकता है. बी पार्ट की बात करें. मैक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन फ्रेसेस. कुछ फ्रेसेस दिया हुआ, इससे आपको सेंटेंसेस बनानी है. डार्केस्ट इवनिंग से एक सेंटेंस बनाओ. लास्ट इवनिंग वॉज द डार्केस्ट इवनिंग विद द पावर आउटेज इन द एंटायर कॉलोनी. नंबर सेकेंड, फॉर्जन लेक. इन श्रीनगर किड्स प्ले क्रिकेट ऑन द फॉर्जन डल लेक. विंटर में ऐसा हो सकता है. इजी विंड. The stroll in the cool evening with the easy wind blowing in the very refreshing. Number 4, harness bell. जो हॉर्स पर बंधा हुआ था, घंटी उसके गले में, हार्नेस बेल. सो द प्रिंसेस हॉर्स हैज़ लवली हार्नेस bells. Downy flake. The leaves of fir tree are covered by downy flake. Number 6, promises to keep. My friend says she has a lot of promises to keep. उसको पूरा करना है. नेक्स्ट नंबर सी पार्ट की बात करें.
सी पार्ट में क्या है, पिक आउट ऑल द नाउन्स फ्रॉम द पोएम, देन अंडरलाइन दोज नाउन्स विच आर क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, राइट एडजेक्टिव्स। कुछ वर्ड्स इसमें नाउन्स इस सी पार्ट्स में बताना है कि नाउन क्या क्या है, और अंडरलाइन दोज नाउन्स विच आर क्वालिफाई एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव भी हो सकती है, राइट। सो इसमें हम लोग बात करते हैं, पोएम की ओर बढ़ते हैं। पोएम में देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं वुड्स। पहला जो वर्ड है वुड्स है, नाउन है, राइट। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, राइट। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, एडजेक्टिव क्वालिफाई हो सकती है। नेक्स्ट हाउस है, उसके बाद नेक्स्ट विलेज, स्नो, फर्स्ट स्ट्रेंजर। नेक्स्ट हॉर्स, हॉर्स क्या है, लिटिल है, वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट फार्म हाउस, ओके। नेक्स्ट है तो आपका लेक, लेक क्या है, फॉर्जन है, तो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इवनिंग, एंड इवनिंग इज वेरी डार्क, सो इट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट हार्नेस बिल, noun, mistake is noun, sound also noun, and wind, wind is easy, easy आपका क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 14 फ्लेक, फ्लेक क्या है, डाउनी है, ठीक है। सो प्रोमिसेस है यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्लेक जैसे मैंने बताया। और माइल्स है, माइल्स आई हैव टू गो, माइल्स। सो ये आपका क्या है, नाउन है। So this is C part completed. Hope you understood well. पोएम भी मैंने एक शॉर्ट समरी बताई है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए पोएम में, तब बहुत ही जल्दी मैं एक पोएम की सीरीज़ लाने वाला हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑल पार्ट ऑफ द पोएम। So till then be happy, see you again in next class. Thank you.